Hello dear students, warm and heartiest welcome to all of you to today's chemistry class. Today we will be continuing with the same topic, the organic compounds containing nitrogen and in special the amines. Today we will complete this topic. Most important, आज भयंकर important बात मैं बताने जा रहा हूँ, दिल थाम के बैठिए, okay? देखते जाइए. What we had discussed in the previous class, let's have a quick look. In last class we discussed of definition, means amines are the alkyl or aryl derivatives of ammonia produced by replacing one or more hydrogen atoms by alkyl or aryl groups. Classification, they are classified broadly into two categories, aliphatic or aromatic, and both aliphatic and aromatic are again classified as a primary, secondary and tertiary. If nitrogen contains only one carbon group, primary; if nitrogen contains two or bonded to two carbon groups, secondary, and three carbon groups, tertiary. Then structure, aliphatic amines have sp3 hybridization, pyramidal shape, tetrahedral geometry, and bond angle is less than 109.28 degree, and it is pyramidal. But in case of aromatic aniline, aromatic amines, it is the sp2 hybridized planar structure and lone pair of electron is present on p orbital. Then isomerism, they show chain isomerism, position, functional and metamerism. Preparation, we also discussed from nitrobenzene, from amide by reduction and Huffman's bromamide reaction, then from alcohol, alkyl halide, from acid, all these things, and from cyanide, Mendes process, we had discussed all these things in a previous class. शायद ये बात आप लोगों की पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, chemical properties and some important applications. Physical properties. In physical properties, you see the physical properties means first physical state. Remember, methylamine and ethylamine are colorless gas having, they are all family members of ammonia. So they have smell like ammonia. But higher members, N-propylamine, isopropylamine, the higher members are liquids and having fishy odor. Fishy odor. Aryl amines are toxic. Aromatic compounds are mostly toxic. Aryl amines are toxic but having pleasant odor. Aliphatic amines, solubility. Aliphatic amines except tertiary are soluble in water. You know the solubility is due to formation of intermolecular hydrogen bonding with the water. RNHH. So this is H, and it makes hydrogen bonding with the water. Again, in this way, the amines make hydrogen bonding with the water, therefore they are soluble in water. And solubility gradually decreases along the homologous series. If you go from a higher series, NH2 group is there, NH2 group is there, and with the increase in the hydrocarbon portion, solubility gradually decreases. But among primary, secondary and tertiary, primary, secondary, tertiary, primary amines are more soluble than tertiary, right? Boiling points, the boiling point of amines are higher than contemporary polar molecules like alkyl halides, but their boiling points are obviously lower than alcohols and carboxylic acids. You know, in alcohols, strong intermolecular hydrogen bonding. In carboxylic acid, again there is strong intermolecular hydrogen bonding. So these strong intermolecular hydrogen bondings in these compounds make the amine having lower boiling point. But among isomeric amines, primary, secondary, tertiary, you see the boiling point of a primary amine is greater than secondary, greater than tertiary. Why? In tertiary amine, molecule assumes spherical shape. And you know, sphere has minimum surface area. Minimum surface area matlab less van der Waals force of attraction. In primary amine, it has almost a linear structure. So linear structure means it has a large surface area. So intermolecular, the molecular contact surface area of contact is high. So van der Waals force is large. Therefore, boiling point is larger. That is, N-propylamine has higher boiling point than ethyl methylamine,
and ethyl methylamine has a higher boiling point than trimethylamine. ठीक है, ये बात ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज गजब का प्रॉपर्टी है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स. व्हाई अमीन्स आर बेसिक, आज उसके ऊपर हम बहुत सारे बातें करेंगे. आइए देखते हैं कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स, व्हाई अमीन्स आर बेसिक, और क्या है रीजन, एंड हाउ द बेसिक कैरेक्टर डिफर्स फ्रॉम अमीन टू अमीन. देखो, amines are basic because they are all produced from ammonia, and you know ammonia has a lone pair of electrons, and base means any substance which has capacity to donate a pair of electrons. So bases are electron pair donors or proton acceptors according to Bronsted-Lowry concept. So among the amines means when we are comparing the basic strength among amines means इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को हम कंपेयर करें, कौन सा अमीन का पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कितनी ज़्यादा है. जिस अमीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए क्षमता जितना ज़्यादा होगा तो मान लो उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा ही होगा. इसका मतलब नहीं कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी है, लेकिन दे रहा या नहीं. जिसके पास धन ज़्यादा है, ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो मान लो दुनिया तक कहे कि वो तो देने वाला है, लेकिन जिसके पास धन ज़्यादा है इसका मतलब नहीं है कि वो अच्छा डोनर है. इसी तरह पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास ज़्यादा होता है. पहला फर्स्ट इन गैसियस स्टेट, very important. In a gaseous state among primary amine, secondary amine and tertiary amine. देखो, इन प्राइमरी अमीन सारी के सारी अमीन के पास इन ऑल अमीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन नाइट्रोजन. प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, देखो इन ऑल टाइप्स ऑफ अमीन्स देयर इज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन. लेकिन बात है लोन पेयर तो है सबके पास, लेकिन डोनेटिंग टेंडेंसी किसके पास ज़्यादा है. देखो ये रहा आर ग्रुप. आर मीन्स अल्किल ग्रुप सोच प्लस आई इफेक्ट मीन्स पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, इट इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप. ये जो बॉन्ड पेयर है ना, द अल्किल ग्रुप रिपेल्स द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards nitrogen. That is why the electron density on nitrogen increases. Hence, in compare to ammonia के पास तो सिर्फ हाइड्रोजन है, उसका तो देना नहीं और लेना भी नहीं है. लेकिन अल्किल ग्रुप के सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन रिपेल करता, धकेलता है. तो दैट इज वाई द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस. हेंस प्राइमरी अमीन आर मोर बेसिक देन अमोनिया. अगर उसी तरह देखा जाए तो इन सेकेंडरी अमीन यू हैव टू अल्किल ग्रुप्स मीन्स टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स और रिपेलिंग ग्रुप्स. ये इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा मतलब डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा है. हेंस सेकेंडरी अमीन, सो दिस इज प्राइमरी अमीन, so this is secondary amine is more basic than primary amine. रही बात टर्शियरी की. अब देखो टर्शियरी अमीन वही नाइट्रोजन पास लोन पेयर तो है ही, लेकिन इसके साथ जो तीन और ग्रुप जुड़े हैं, देखो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिपेलिंग द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड नाइट्रोजन. मतलब नाइट्रोजन के पास चारों तरफ बहुत ही सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास बहुत ही ज़्यादा है. बहुत ही ज़्यादा मतलब डोनेटिंग टेंडेंसी भी बहुत ही ज़्यादा है. इसीलिए इन गैसियस फेज टर्शियरी अमीन इज मोर बेसिक दैन सेकेंडरी इज मोर बेसिक दैन प्राइमरी. ये गैसियस फेज में सिर्फ और सिर्फ गैसियस फेज में है. लेकिन अगर उनको हम पानी में डाल देंगे H2O, कहानी कुछ अलग हो जाता है. पानी के अंदर में उनका
कहानी कुछ अलग होता है। क्या होता है देखते जाइए। इन प्राइमरी अमीन यू सी ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अभी देखो देर आर थ्री फैक्टर्स डिसाइड व्हिच अमीन विल बी मोर बेसिक। थ्री फैक्टर्स, एक ही फैक्टर नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ, और अकेला कभी डिसाइड नहीं करेगा कि कौन सा अमीन मोर बेसिक होगा। थ्री फैक्टर्स दोस्तों, थ्री फैक्टर्स याद रखना। पहले इंडक्टिव इफेक्ट अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट अभी मैंने बताया टर्शियरी अमीन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी, मोर बेसिक देन प्राइमरी, है ना, बिकॉज टर्शियरी अमीन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। टर्शियरी अमीन के नाइट्रोजन के पास बहुत ही माल है, बहुत ही इलेक्ट्रॉन्स है, देने का कैपेसिटी बहुत ही है, इसीलिए दुनिया जानते हैं कि इसका डोनेटिंग टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट on the basis of a steric effect means ही देखो हम डोनेटिंग टेंडेंसी को किससे मेजर करेंगे कि भिखारी जो प्रोटॉन है ना, ये जो प्रोटॉन दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी है, नंगा प्यासा भूखा, उसके पास रहने के घर नहीं है, खाने के कुछ नहीं है, वो घूमता फिरता है, और जिसके पास जाएगा ना हम कहेंगे इसका डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा है। देखो प्राइमरी अमीन RNH2N, देखो यहाँ पे अगर एक प्रोटॉन आ रहा है, लोन पेयर तो है ही, कंफर्टेबली ये एडजस्ट कर सकता है यहाँ पे RN, देखो H plus, because there is enough space that proton can be accommodated around nitrogen. In secondary there are two R groups. When H is coming, proton is coming, it will face some repulsion. दो मोटे मोटे लोग बैठे ना, कोई तीसरा आ जाए कि उनको भगाएंगे, तू कहाँ से आ गया, हमको तो यहाँ बैठने से हम परेशानियां हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत नाराजगी वहां पे देखने को मिलेगा। RN फिर भी कहे चलो आ तो गया, काम चला लेते हैं, चलो क्या करें, ये हो गया। तीसरा टर्शियरी RN R, जब प्रोटॉन आ रहा है तो उसको देखो क्या होगा, जगह तो नहीं है तो बड़ी तकलीफ होगा, तो RN R और ये रहा H। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक इफेक्ट प्रोटॉन विल नॉट प्रिफर टू गो टू टर्शियरी अमीन का, वो कहे कि वहां जाने से कोई फायदा नहीं, वो भगा देते हैं, तो प्राइमरी अमीन के पास वो जल्दी जाएगा क्योंकि प्राइमरी अमीन के पास जगह बहुत ही है। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक इफेक्ट primary amine has a greater tendency to accept proton. The substance which has a greater tendency to accept proton is strong base. So on the basis of steric effect, primary greater than secondary greater than tertiary amine, more basic. नेक्स्ट इज हाइड्रेशन इफेक्ट। हाइड्रेशन गजब की इफेक्ट है, हाइड्रेशन इफेक्ट देखो ये रहा हाइड्रेशन। मीन्स क्या फायदा है, हम प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, डोनेट करेंगे, क्या फायदा है, नाम भी होना चाहिए, स्टेबिलिटी मिलना चाहिए, पुण्य होना चाहिए, मैं कुछ दान करता हूं तो पुण्य भी मिलना चाहिए। क्या पुण्य मिलता है, देखो अगर प्राइमरी अमीन के बाद देखो when it accepts a proton the nitrogen gets positive charge, there are 3 हाइड्रोजन, ये भी सारे के सारे हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, भयंकर इंपॉर्टेंट। और these 3 हाइड्रोजन्स they are surrounded by water, they make hydrogen bonding with water, OH means large quantity of hydration energy is released। क्या फायदा है। So primary amine when accepts proton it forms more hydrogen bonding, means greater hydration energy. In case of secondary amine, देखो secondary amine it forms less number of hydrogen bonding with it only makes hydrogen bonding with 2 water molecules, means less hydration energy. And in case of tertiary it is only 1 hydrogen molecule, means less hydration energy. So जिससे जितना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगा उसका स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा। सो इन दैट केस, इन केस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, प्राइमरी अमीन हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, बिकॉज प्रोटॉन लेने के बाद ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी उससे रिलीज हो रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी
प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी। देखो देखो थ्री फैक्टर से देखो, इंडक्टिव इफेक्ट से टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक इफेक्ट सेकेंड प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी, और ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन। तीनों रीजन से दो रीजन में हम देख रहे हैं प्राइमरी आगे चल रहा है और एक इंडक्टिव इफेक्ट से टर्शियरी। तो आप डिसाइड होगा टर्शियरी से मोर बेसिक या प्राइमरी, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो बीच में फायदा ले लिया सेकेंडरी। प्राइमरी और टर्शियरी के बीच में जो युद्ध हो रहा है, कौन बनेगा टॉप मोस्ट पोजीशन, तो बीच में आ गया सेकेंडरी। सो कुल मिला के सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी ग्रेटर देन प्राइमरी, या सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शियरी, ऐसे ही रहा। ठीक है, ये बड़ी गजब की चीज है। सो दिस इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स इन aqueous सॉल्यूशन। गैसेस फेज की बात अलग है, aqueous सॉल्यूशन की बात अलग है। ठीक है, और भी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, ठीक है। इन aqueous solution you see secondary greater than tertiary or greater than primary, or secondary greater than tertiary greater than primary, that depends upon nature of alkyl groups। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी ग्रेटर देन प्राइमरी कब होगा? व्हेन आर इज इथाइल, इथाइल और हायर। जैसे रिमेंबर दैट इज डाइइथाइलअमीन, डाइइथाइलअमीन is more basic than, diethylamine is more basic than triethylamine, triethylamine, and triethylamine is more basic than your ethylamine, ethylamine, and ethylamine is more basic than ammonia। ये रहा, if R group is more ethyl or more, because in this case the inductive effect caused by R group or alkyl group is more stabilized, and here some steric effect in hydration। हाइड्रेशन में थोड़ा तकलीफ हो रहा है बिकॉज लार्ज साइज, इसलिए द इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर हाइड्रेशन इफेक्ट इफ आर इज इथाइल और हायर। बट इफ आर इज छोटा सा बच्चा मिथाइल जैसे अगर बच्चा है, तो इफ आर इज मिथाइल, तो देखो ये तो डाइमिथाइल अमीन वो तो मोर बेसिक है ही, मोर बेसिक देन मिथाइल अमीन, बिकॉज हियर हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट्स ओवर स्टेरिक इफेक्ट, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट एंड ग्रेटर देन अमोनिया। ये बड़ी गजब की चीज है, याद रखना। एंड देन इन केस ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमीन के बीच में अगर हम कंपैरिजन करेंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक के बीच में अगर हम कंपेयर करेंगे, देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आज बताने जा रहा हूं, खुलासा करने जा रहा हूं बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। ऑल एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन aromatic amines। So many times this has been asked in the examination. Why? Here it is inductive effect. Due to inductive effect, the electron density or nitrogen is increased, is higher, means it has a greater tendency to donate electron pair. More electron density, more tendency. But यहाँ देखो अनिल इनमें क्या करेगा बेचारा, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस, वो रेजोनेंस उसको बर्बाद कर दिया, उसको भिखारी बना दिया, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं रहा, वो सब खींच के ले गए उसके पास से। वो कहा बेचारा मैं क्या करूं, मेरे पास भी नहीं है देने के लिए, तो मुझे कुछ भी अगर हो तुम्हारे पास तो मुझे दो, और मैं क्या तुम्हें दूं। ठीक है ना, मैंने देखा था लोन पेयर, अरे भाई देखा था लोन पेयर, अभी वो नहीं है, वो चला गया है, अभी मैं कंगाल हो गया हूँ, मुझे तो दो। ठीक है, इसीलिए डोनेटिंग टेंडेंसी उसका घट जाता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है। ये अहम बात है, याद रखना।
अगर इसके साथ अगर हमने कुछ कमाने वाले को जोड़ देंगे, देखो मिथाइल ग्रुप को अगर लगा दिया, एक ही बेटा उसका कमा के बाप के पास भेजना शुरू किया, तो बाप कितना भी खर्च करे, थोड़ा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, थोड़ा तो ज्यादा होगा, कुछ तो बचेगा, तभी इसका उसके फेस में मुस्कान आएगा, तो उसका बेसिक कैरेक्टर एनिलीन से ज्यादा होगा। और तो और इतना ही नहीं, देखो गजब की चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर उसके बीच में CH2 डाल दिया जाए, बीच में ये जो ना लोन पेयर चला जा रहा था रेजोनेंस में, ये बीच में अगर CH2 डाल दिया जाएगा, तो ये बेचारा कहाँ जाएगा, उधर की उधर रह जाएगा। तो मीन्स डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, तो भयंकर रूप से बढ़ेगा। तो इट विल बी मोर बेसिक, देन अमोनिया के ऊपर से चला जाएगा। ऐसे अगर हम देखेंगे तो दिस इज मोर बेसिक देन अनिलीन, अगर सारे के सारे एलिफेटिक और एरोमेटिक के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे, तो देखना सेकेंडरी अमीन एलिफेटिक इज ऑलवेज मोर बेसिक देन प्राइमरी, ये तो रहा हमेशा। और ये यहां तक खत्म हो गया एलिफेटिक की राज। यहां पे आ गया तुम्हारा एरोमेटिक। देखो बेंजीलामीन, ACH2 ग्रुप ने उसको बचा लिया, सिर्फ बचाया नहीं, उसका बेसिक कैरेक्टर को भी बढ़ाया। देखो ये मोर बेसिक देन अमोनिया, और देखो ये क्या हुआ, NH2, ये रहा तुम्हारा एनिलीन के पास जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ना, वो हमेशा रेजोनेंस की वजह से बर्बाद हो जाता है। सो ये रहा तुम्हारा टेंडेंसी। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन। भयंकर इंपॉर्टेंट है। आज इसे बात मैं बताने जा रहा हूं, ना कभी सुना होगा ना सुनोगे। देखो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स on basic strength of aniline। देखो अनिलीन तो ऐसे ही लेस बेसिक है, वो तो बड़ा दुखियारी है, बड़ी हमें उसका लोन पेयर हमेशा रेजोनेंस में चला जाता है। अगर इसके साथ रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम लगा देंगे, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा। तो मीन्स एनिलीन का जितना भी बेसिक कैरेक्टर है वो भी घट जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन। सो एनिलीन से वो घट गया, ठीक है। सो एनिलीन के बेसिक स्ट्रेंथ से वो घट गया। अगर उसके साथ इलेक्ट्रॉन कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हम लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाएगी योर OH हो या NH2 हो, ऐसे कुछ ग्रुप्स अगर हम लगाएंगे, तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन वो थोड़ा सप्लाई करेंगे रिंग को, डेंसिटी बढ़ेगा, तो मीन्स नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, देने का टेंडेंसी बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये सीधी सी बात है। और ये खींचने वाला रह जाएगा, जैसे कि नाइट्रो, सियानाइडी, आल्डिहाइडी, ये तो कंगाल है, और फिर उनको कंगाल भी बना देंगे, CaOH एटसेट्रा। ये ग्रुप अगर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा, एक्सेप्ट एट ऑर्थो पोजिशन, एक्सेप्ट एट ऑर्थो पोजिशन। आइए देखते हैं कि क्या है ऑर्थो पोजिशन में, क्या कहानियां और क्या घटनाएं घटती है ऑर्थो पोजिशन के साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, देखो अगर देखो ये रहा अनिलीन, ये रहा तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप, मैंने लगा दिया, ऑर्थो में लगाया और मेटा में लगाया, NH2 मेटा में लगाया और मैंने पारा में भी लगा दिया। अब बताओ उनमें
अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ एंड एनिलीन। ठीक है, देखो ये तो ऑर्थो इफेक्ट उसको कहते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा घट जाएगा। So what will be? So here it is minus m effect, at para position it is minus I effect, it is minus m effect। मैं बताता हूँ, तो माई नेगेटिव रेजोनेंस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सो दैट मीन्स दिस विल बी लीस्ट। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये तो सबसे कम होगा, सो मीन्स दिस इज 1 2 3, दिस इज 4, मीन्स 1 इज मोर बेसिक दैन 3, 3 इज मोर बेसिक दैन 4, 4 इज मोर बेसिक दैन 2। ये रहा कहानी। देखो एनिलीन से घट जाते हैं। एंड इफ यू add plus I group like your here it is NH2 orthotoluidine and a metatoluidine, paratoluidine and a aniline, you now arrange them in the increasing order for their basic strength। क्या होगा? So this is plus hyperconjugation, it is hyperconjugation, means so this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, so that means 3 will be more basic than this will be second will be more basic than this is third one, this fourth one, and because of ortho effect its strength decreases, so ortho substituted anilines are always less basic than aniline। So this is the ortho effect, we will discuss in detail about ortho effect। Okay, now let us discuss what is ortho effect। बहुत ही गजब का इफेक्ट है, बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट है। Why ortho substituted anilines are less basic than aniline irrespective of the nature of a substituent, whether plus I group or minus I group, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्थो ग्रुप में जो भी आएगा एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा ही घटेगा, एक्सेप्ट मतलब कोई भी ग्रुप ऑर्थो में आ जाए बेसिक स्ट्रेंथ नहीं घटने वाला है। ये कान खोल के सुन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ कौन सा ग्रुप, ये ग्रुप नहीं रहना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं रहना चाहिए, ड्यूटेरियम नहीं रहना चाहिए, ट्रिटियम नहीं रहना चाहिए, OH ग्रुप नहीं रहना चाहिए, सियानाइड को मना है, तो ऑर्थो में मत आना, और NH2 ग्रुप, ये सारे ग्रुप ऑर्थो में नहीं रहना चाहिए, तब जाके ऑर्थो इफेक्ट आएगा। Why basic strength decreases? सारे के सारे किताब वही लगते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट परहैप्स कॉम्बिनेशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन स्टेरिक यार क्या है कॉम्बिनेशन यार, खुल के बताओ ना। अब मैं बताता हूँ, देखिए सपोज ये रहा तुम्हारा एनिलीन, ये रहा एनिलीन, ठीक है, एनिलीन बेसिक स्ट्रेंथ मतलब क्या, यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे एक ग्रुप है, इसको स्ट्रक्चर खोल देते हैं, H, ये रहा H। इफ G इज बल्की ग्रुप लाइक मिथाइल, उसको छोड़ के और जितने सारे ग्रुप्स है, उसको छोड़ के जितने सारे ग्रुप्स है, व्हेन इट एक्सेप्ट्स ए प्रोटॉन, उसका काम था प्रोटॉन लेना, उसका काम था प्रोटॉन लेना, उन्होंने तो ले लिया, लालच से ले लिया, लेने के बाद देखो क्या हो रहा है, उसका हालत क्या हो गया, उन्होंने तो ले ही लिया H और H। यहाँ पे जो ग्रुप G है, ये देखो इतना, इट इज सो क्लोज, दिस H इज सो क्लोज टू हाइड्रोजन, दिस ग्रुप बल्कि ग्रुप, तो रिपल्सन हो रहा है, जबरदस्त रिपल्सन हो रहा है, तगड़ा रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर और G के बीच में इतना रिपल्सन हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिपल्सन एनर्जी इंक्रीजेस, वो तो अब रोने लगा कि क्या मैंने कर दिया, बिकॉज साइज इंक्रीजेस, इसका साइज बड़ा हो गया, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज, और G ग्रुप इज लार्ज साइज इज सो स्ट्रॉन्ग रिपल्सन, वो अब रोना शुरू हो गया कि मैंने क्या कर दिया, लालच में प्रोटॉन ले लिया, अब मैं बर्बाद हो गया, मैं नहीं चाहता हूँ कि प्रोटॉन मेरे साथ में रहे, इसीलिए वो क्या करेगा, उसको वापस भेजेगा, भाई तू चला जा मेरे से, दूर हो जा मेरे से, और मुझे थोड़ा चैन से रहने दे, शांति में रहने दे, इसलिए
वो प्रोटॉन नहीं लेना चाहेगा, बिकॉज ये ग्रुप है ना, ये तो वहां पे बैठा है कि कब तू प्रोटॉन लेगा तुझे मैं बर्बाद करके रहूंगा। इसको कहते हैं, इफेक्ट को कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होने के बाद जो स्टेरिक इफेक्ट होगा वो उसको परेशान करेगा। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस SIP स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, जिसको हम कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, so it will come back to the equilibrium, shift towards the left hand side, and its a proton accepting tendency will decrease. That is why the basic strength decreases. ये रहा। और तो और एक बड़ी गजब की चीज बता रहा हूं, अगर तो और यहाँ पे अगर हमने ई ग्रुप के साइज अगर बढ़ा देते हैं, अगर इस ग्रुप का साइज अगर हम बढ़ा देंगे, व्हाट विल हैपन? तुम तो कहोगे सर ये तो छोटा छोटा हाइड्रोजन था, अब स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है, अगर ये बड़ा ग्रुप होगा तो भयंकर स्थिति होगा, भयंकर सिचुएशन होगा। नहीं, अगर ज्यादा बड़ा ग्रुप लग गया ना, यहाँ पे देखो आर ग्रुप अगर यहाँ लगा, एक ही हो या दो हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिपल्सन तो होगा ही होगा, तगड़ा रिपल्सन होगा। और रिपल्सन से क्या होगा जानते हो? ये जो ग्रुप है, ये जो इन प्लेन था, रिंग के साथ जो इन प्लेन था, इन प्लेन होने की वजह से क्या हो रहा था? रेजोनेंस हो रहा था। रेजोनेंस होने से तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा था। तो ये क्या करेंगे? दे विल, बिकॉज ऑफ रिपल्सन, दे विल पुश दिस ग्रुप आउट ऑफ अ प्लेन, उसको प्लेन से बाहर निकाल देगा, प्लेन से धक्का मार के बाहर निकाल देगा। अगर धक्का मार के आउट ऑफ प्लेन कर दिया तो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इंडक्टिव फेट से, लोन पेयर तो वहां पे ज्यादा अवेलेबिलिटी होगा लोन पेयर का, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। उसको कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR, SAR मीन्स स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। मतलब देखो देखो देखो, बड़ी गजब की चीज है। अगर यहाँ पे आर ग्रुप एक हो या दो लगा दिया मैंने, और दो लगा दिया, ठीक है, देन कोई भी बल्कि ग्रुप अगर यहाँ पे आएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इससे कोई ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं देगा और रिवर्स होने वाला है। गजब का चीज है। उसको कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन और स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन इफ ही बल्की ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन। शायद ये बात आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं एनिलीन का। केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही सारी चर्चा हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स बेसिक कैरेक्टर के ऊपर। आप कोई भी किताब उठा लीजिए और पढ़िए, बस आराम से सारी बात समझ में। रिएक्शन विथ एसिड्स, देखिए फर्स्ट रिएक्शन विथ एसिड्स, रिएक्शन विथ एसिड्स, यू नो ऑल अमीन्स आर बेसेस, ऑल अमीन्स आर बेसेस, चाहे वीक बेस हो स्ट्रॉन्ग बेस हो, बेस ही बेस है। सो दे मस्ट रिएक्ट विथ HCl, एसिड, HCl हो, नाइट्रिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, कोई भी एसिड डाल दो, एसिड बेस रिएक्शन मीन्स दे विल फॉर्म सॉल्ट। सो दे विल फॉर्म salt. Salt is formed means alkyl ammonium chloride. ठीक है, if you take secondary amine no problem, secondary amine no problem. Again if you add HCl you will get R2NH2 plus Cl minus. If you take tertiary amine similarly you will get tertiary ammonium chloride. ठीक, so you will get a salt. And next is on after reaction with acid, this is first chemical reaction. Let us discuss reaction with alkylate, बहुत important है, वेरी वेरी, ये भी मैंने प्रिपरेशन में भी डिस्कशन कर चुका हूँ। सो अमीन, एलिफेटिक अमीन हो या एरोमेटिक अमीन, व्हेन रिएक्ट्स विथ alkyl halide, when reacts with alkyl halide in alcoholic medium at some elevated temperature within 100 degrees Celsius,
what will happen? You see, this is 1H, XR. So primary amine on reaction with your alkyl halide give you secondary amine. Secondary amine, and again it has another hydrogen, and it again combines with your third alkyl halide and give you tertiary amine. And reaction यहाँ रुकने वाला नहीं है. If more alkyl halide is available, if it is more available in quantity, reaction यहाँ तक चला जाएगा, रास्ता में नहीं रुकेगा. You will get quaternary ammonium halide, tetraalkyl ammonium halide. This is the end product. Means you will get mixture of product. देखो देखो देखो, प्राइमरी अमीन लिया, वन इक्विवेलेंट अल्किल हैलाइड अगर दिया, you will get secondary. If 2 equivalent alkyl halide दिया, it is tertiary. If 3 equivalent alkyl halide दिया, तो it will be quaternary. Reaction तो quaternary तक ही जाएगा. ठीक है? If you want to distinguish what type of amine is there, you are given. If a secondary amine is given, then it will consume 2 equivalent of alkyl halide. If tertiary amine is given, it will consume only 1 equivalent of alkyl halide. If a primary is given, it will consume 3 equivalents of alkyl halide. उसी से ही पता चलेगा कि तुम्हारे पास जो alkyl halide जो अमीन है वो किसी टाइप का है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी. अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट भयंकर इंपॉर्टेंट रिएक्शन. आप कहोगे कि सर आप तो हर एक रिएक्शन को भयंकर इंपॉर्टेंट कह रहे हैं. भाई वो इंपॉर्टेंट तो है ही, इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट उसको तो इंपॉर्टेंट कहेंगे. देखो देखो देखो, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड. मैं तो मैकेनिज्म नहीं कर रहा हूं. नाइट्रस एसिड इज अनस्टेबल एसिड, सो इट इज प्रोड्यूस्ड इन situ by reacting sodium nitrite and HCl. जब जरूरत पड़े नाइट्रस एसिड बनाने के लिए डाल दो सोडियम नाइट्राइट एंड HCl डाल दो. और जब नाइट्रस एसिड के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं ना, याद रखना दोस्तों, टेम्परेचर कम होना चाहिए, 0 डिग्री के आसपास होना चाहिए, वेरी लो टेम्परेचर होना चाहिए. देखो क्या ये रिएजेंट का क्या काम है, रिएजेंट का क्या काम है. देखो अगर तुमको एलिफेटिक अमीन दिया गया, प्राइमरी अमीन, मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी एलिफेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट. नाइट्रस एसिड मैं इसी तरह लिखता हूं, HO बॉन्ड N डबल बॉन्ड O. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म नहीं डिस्कस कर रहा हूं. देखो H2 के साथ O, बस तरीका बता रहा हूं कैसे प्रोडक्ट लिखना, सही ढंग से सही प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, मैं उसका तरीका बता रहा हूं. देखो ये रहा, N के साथ N चला गया N2, और H2 के साथ O चला गया H2 होके, और बच गया OH और R. ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में. मीन्स यू विल गेट एलिफेटिक अल्कोहल प्लस N2 प्लस H2O, अल्कोहल बना डाला. सो नाइट्रस एसिड, रिमेंबर नाइट्रस एसिड ऑन रिएक्शन विथ primary amine produces alcohol. अगर if I take secondary amine, क्या कहोगे सर? if this is secondary amine, नाइट्रस एसिड देखो, यहाँ पे 2H था इसलिए O के साथ कंबाइन हुआ, HON डबल बॉन्ड O. ये देखो एक के पास H है, ये OH. अगर 2H होता तो वो इसी O के साथ कंबाइन करता. एक ही H है तो OH के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? R डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, नो ये रहा सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O. दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसोअमीन. दिस इज कॉल्ड लिबरमैन्स नाइट्रोसोअमीन. और देखो अगर मैंने लिया एरोमेटिक अमीन, मान लो एनिलीन लिया, एलिफेटिक अमीन प्राइमरी, एरोमेटिक प्राइमरी मैंने लिया, वही सोडियम नाइट्रस एसिड डाला, वही नाइट्रस एसिड कैसे पाए जाते हैं? सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ. 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री लिखना, 0 से 5 डिग्री तक चलेगा, 0 से 5 डिग्री तक चलेगा. क्या होगा? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड
बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन रहा है. इंस्टेड ऑफ अल्कोहल you get a benzene diazonium chloride. ये रहा difference. Aliphatic primary amine gives you alcohol. Aromatic amine gives you BDC, means a benzene diazonium chloride. ये रहा गजब का difference. आइए और एक रिएक्शन विथ एसिडिक क्लोराइड. रिएक्शन विथ एसिडिक क्लोराइड. एसिडिक क्लोराइड के साथ क्या रिएक्शन हो रहा है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन. रिएक्शन विथ एसिडिक क्लोराइड. रिएक्शन विथ एसिडिक क्लोराइड. देखो प्राइमरी अमीन ऑन रिएक्शन विथ एसिडिक क्लोराइड, ऑन रिएक्शन विथ एसिडिक क्लोराइड दे प्रोड्यूस द H और Cl, दोनों चले गए साथ साथ. और यहाँ से थोड़ा रीअरेंजमेंट करके लिखो, समझने में आसान होगा. NH ये रहा R, मीन्स एन अल्किल amide, means substituted amide you will get. If you take secondary amine, tertiary amine के पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, it will not react. If you take secondary amine, what will be the product? देखो थोड़ा रीअरेंजमेंट करके लिखते हैं. NCH3 plus HCl means NN डाइअल्किल अमाइड, डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड हमको मिल रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट. और एक रिएक्शन भयंकर इंपॉर्टेंट, कार्बिल अमीन रिएक्शन, नॉट कारगिल. कार्बिल अमीन रिएक्शन. कार्बिल अमीन रिएक्शन. व्हाट इज कार्बिल अमीन रिएक्शन? कार्बिल अमीन किसको कहते हैं भाई? आइसोसियानाइड को कहते हैं. रिमेंबर दिस रिएक्शन इज ओनली शोन बाय प्राइमरी अमीन्स. एग्जाम में पूछा जाएगा, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स. ये रहा कार्बिल अमीन रिएक्शन. सो कार्बिल अमीन इज द reaction which is only shown by primary amines, only primary. It may be aliphatic or aromatic, no problem. देखो aliphatic amine CH3 NH2, when it reacts with the chloroform and a alkali solution, in alcoholic medium, it give you alkyl isocyanide plus 3 KCl plus 3H2O. So this is isocyanide having very foul smell, called as carbylamine reaction. Okay. देखिए कोई कार्बिलामिन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक अमीन नहीं, और एरोमेटिक अमीन. इफ यू टेक aniline and then you are reactive with the aqueous or alkali chloroform solution plus 3 KOH, again you will get benzonitrile and a 3 KCl plus 3 H2O. बहुत important reaction है. So this is only shown by primary amines of both aromatic and aliphatic. Okay. Next is a reaction with the aldehyde. Reaction of primary amine with aldehyde is skip base. How skip base is formed? Primary amine RNH2, and when it reacts with the aldehyde compound, this is your general structure. In presence of acid, it produces, देखो ये N और C के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, R बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C, H और R plus H2O. So this is skip base. Now we'll discuss electrophilic substitution reaction of aniline. In aniline, you see, the NH2 group is a powerful activating group. It activates the ring at strongly at ortho position, and therefore electrophilic substitution reactions take place preferably at ortho and at para positions. So you know the structure of resonance structure of aniline.
and you see the negative charge is developed at ortho and para positions. Hence, all electrophilic substitution reaction take place at these two positions, right? So let us see. It is a very, very activating group. Very, very activating group. Very important. If you react aniline with the bromine, aqueous bromine, and you see it activates the three position, 2 ortho and 1 para, तीनों पोजिशन को इतनी एक्टिवेट कर रहा है ये, मान लो at a time at these three positions substitution reactions take place. It activates the ring to that extent. Imagine कितने भयंकर वो एक्टिवेट कर रहा है, हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दे रहा है, 2,4,6 ट्राइब्रोमानिलिन। एक ही साल क्वेश्चन पूछा गया था, सवाल पूछा गया था CHES एग्जामिनेशन। अगर हम चाहते हैं कि नहीं सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो में लगे और पारा में लगे, तो क्या करेंगे, उसको थोड़ा डीएक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि उसके पास जो लोन पेयर है ना, वो लोन पेयर के बलबूते पर ये एक्टिवेट कर रहा है, उसको थोड़ा सा हमको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, देखो उसके साथ एसिडिक क्लोराइड का रिएक्शन करो, क्या बनेगा, एनिलाइड बनेगा। देखो NHCOCH3 एनिलाइड बना दिया। एनिलाइड बनाने से क्या होगा ना, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था ना, देखो ये अब क्रॉस रेजोनेंस होगा, इधर जाएगा कि इधर आएगा, तो ये भी खींचेगा अपनी तरफ से, यहां भी आएगा, तो यहां आने की जो चांसेस है वो घट जाएगा। तो एट ए टाइम जो तीन पोजीशन को एक्टिवेट कर रहा था, अब वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसके बाद तुम करो ब्रोमिनेशन करो, डालो ब्रोमीन, और उसके बाद एल्यूमिनियम फेरिब्रोमाइड डाल दो, ठीक है, FeBr3। उसके बाद देखो वो आराम से NH वो कुछ नहीं कर पाएगा ब्रोमीन, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज रिपल्सन होगा अगर या इफ इट गोज टू ऑर्थो पोजिशन, सो इट विल प्रिफरेबली मूव टू पारा पोजिशन। अगर स्मॉलर ग्रुप होता, क्लोरीन होता, तो ऑर्थो को चला जाता। तो क्या होगा, देखो उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो, काम खत्म हो गया, उसको हाइड्रोलिसिस कर दो, यहाँ पे H और OH, अब वो रीजेनरेट हो गया। तो उसको थोड़ा यहाँ पे हमने कुशलता से काम ली, ठीक है, ये रहा। अगर सिंगल प्रोडक्ट चाह रहे हो, इफ यू वांट सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज द रूट। सो दिस इज हालोजिनेशन, ओके। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। देखो सल्फोनेशन, नंबर 2 सल्फोनेशन कैसा हो रहा है, सल्फोनेशन देखो, सल्फोनेशन aniline is a base, no doubt. When it reacts with sulfuric acid, ये सल्फोनेशन ऐसे नहीं हो रहा है। एसिड बेस रिएक्शन तो मीन्स इट विल फॉर्म सॉल्ट, मीन्स aniline bisulfate will be formed, and it will undergo rearrangement. To produce deuter ion SO3 minus, and this deuter ion on rearrangement, यहाँ से एक H यहाँ चला आएगा, so you will get sulfanilic acid, और paraamino बेंजीन सल्फोनिक एसिड और सल्फानिलिक एसिड। और भयंकर कहानी है नाइट्रिक एसिड के साथ, जब नाइट्रेशन करने हम जा रहे हैं, देखो कितना मुसीबत झेलना पड़ेगा। नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड नॉट ओनली एसिड, इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो अगर हम नाइट्रेशन करने निकले एनिलीन को, देखो HNO3 और जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड, बोथ आर नाइट्रेटिक मिक्सचर। हम तो चले थे पाने के लिए ऑर्थो और पारा, लेकिन हमको दोस्तों मिल गया क्या, ऑर्थो सिर्फ और सिर्फ 2%, हमको मेटा मिल गया ज़्यादा। ये बड़ी परेशान की बात है। तू कहाँ से आ गया 47%, और तुम्हारा जो पारा नाइट्रो वो तो ठीक है, एज पर आवर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये रहा
51%। ये गजब की कहानी क्या है? राज ये है, इन्होंने क्या किया, प्रोटॉन को खींच लिया, पकड़ लिया। जब प्रोटॉन को पकड़ लिया तो ये हो गया तुम्हारा NH3 प्लस, वो भिखारी बन गया, वो भिखारी बन गया। उसके पास लोन पेयर है ही नहीं, वो बोलेगा कि भाई मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए वो क्या करेगा, जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल उसको बोल भेजेगा कि तू बेटा जा मेटा पोजिशन में जाके लग जा, क्योंकि ऑर्थो और पारा में कुछ नहीं बचा है। ठीक है, देखो अगर हमको पारा ही चाहिए तो वही रास्ता अपनाना पड़ेगा कि एसिटिल क्लोराइड डाल दो, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करो, बस वो होगा तुम्हारा अनिलाइड बनेगा। अनिलाइड बनने के बाद तुम अब आराम से नाइट्रिक एसिड डालो, सल्फ्यूरिक एसिड डालो, जो मर्जी डालो नाइट्रेटिंग मिक्सचर, अब वो तुम्हारा पारा में जाके सेटल हो जाएगा। पारा में जाके सेटल हो गया, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो, बस काम खत्म, और आ गया तुम्हारा पारा नाइट्रोअनिलीन। ये रहा तुम्हारा NH2 और रहा NO2। ये रहा तुम्हारा, अगर इफ यू वांट टू प्रिपेयर वो सिंगल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसिलेशन होता ही नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन होता ही नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड तो बर्बाद करके रख देता है अनिलीन में NH2 को, वो छोड़ता नहीं एल्यूमिनियम क्लोराइड, लुईस एसिड ये देखता है लोन पेयर है उसके साथ कंबाइन हो जाता है। तो मतलब कि जो अल्काइलेशन और एसिलेशन वो इधर वो रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, इसलिए दे डोंट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताया। चलिए कुछ सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ 2020 में पूछा गया था, इथाइलामीन, मिथाइलामीन और अनिलीन। आराम से कह सकते इथाइलामीन इज मोर बेसिक देन मिथाइलामीन, मिथाइलामीन इज मोर बेसिक देन अनिलीन। रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी अमीन एंड क्लोरोफॉर्म इन aqueous KOH is called as dash. It is called as carbylamine reaction. Electrophilic substitution reaction in aniline takes place at dash positions. Meta only ortho, only para, ortho and para. It is ortho para directing. ठीक है, this was asked in 2010. What is the product obtained methyl cyanide reduced by sodium and ethyl alcohol? Methyl cyanide on reduction produces ethylamine. Explain Huffman's bromamide reaction when acid amide is treated with the bromine in aqueous KOH solution produces primary amine containing 1 carbon atom less. Explain carbylamine reaction when primary amine is treated with the chloroform and aqueous KOH or NOH solution, it produces alkyl isocyanide called as carbylamine, having very foul smell. This was asked in 17, 11, 9 and 1. Explain why methylamine is more basic than aniline, बता चुका हूँ. And how you convert, छोड़ो. Okay, I think ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, and I am sure whatever questions are likely to come in the examination, you will enjoy answering all the questions. Thank you very much for attending my class. Thank you all. God bless you all.